Okay, let's prepare our hearts. आइए अपने दिलों को तैयार करेंगे, Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you, Lord, for this beautiful day. पिता, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, we come to you today with an expectation in our hearts. आज हम आपके पास एक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं परमेश्वर। Lord, we worship you from the bottom of our heart today. हम अपने दिल की गहराई से आपकी आराधना करते हैं। Lord, we all being from the place where we are. We all being from the place where we are. हम जहाँ से भी आ रहे हैं, And Lord, we are sitting in our house and just looking after you. हम अपने घरों से परमेश्वर आपकी ओर अपनी नज़र को लगाते हैं। Thank you, Lord, for इस making us to experience your presence. धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Speak to our hearts today. आज के दिन हमसे बातें कीजिए, Touch souls, Lord. लोगों के दिलों को छुइए परमेश्वर। Lord, not only the sicknesses of our body but also of our hearts. सिर्फ हमारी बीमारियों को नहीं परमेश्वर, लेकिन हमारे दिलों को भी छुइए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। We offer our sacrifices of our praises to you now. हम आपके सामने अपने प्रेजेस को लेके आते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से Amen. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing the song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, Lord, I worship Your holy name. Your rich in love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, Lord, I worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like
worship your holy name. Lord, I worship your holy name. तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से नारा मधुर बन गया, तेरे कहने से तुम शाखाएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी भूली चली गई। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, ओ मन्ना दूरी है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना दूरी है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, वो मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मन बन गया, तेरे कहने से शाखाएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी भूली चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना की विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना की विवाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। तेरे कार्यों से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से शाखाएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी भूली चली गई। Good morning, church. सुप्रभात चर्च, Welcome to Sunday morning service. संडे मॉर्निंग सर्विस में आपका स्वागत है। It's not my home. ये मेरा घर नहीं है, We are recording this from our church office. हम चर्च ऑफिस से रिकॉर्ड कर रहे हैं। It's a privilege to see the brothers and sisters here. अच्छा लग रहा है भाइयों बहनों को देख के। I'm here for the announcement today. हमारी कुछ अनाउंसमेंट है। You all know that
Our Bible college is on. आप सब जानते हैं हमारा बाइबल कॉलेज चल रहा है। Pastor Binu is taking a class on Tuesday, पास्टर बीनू मंगलवार को हमारी क्लास लेते हैं। and Pastor Dharmesh is taking a class on Monday. पास्टर धर्मेश सोमवार को क्लास लेते हैं। I encourage you all to join the classes and get benefited. मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि उन क्लासेस में आप हिस्सेदार हो। Get connected with us spiritually. आप आत्मिक रूप में उससे कनेक्टेड हो। We also do devotions from Thursday to Monday. थर्सडे से मंडे तक हमारे डिवोशन टाइम भी रहते हैं। You can stay connected with us through that as well. आप वो भी हर दिन देख सकते हैं। There is men's time and ladies time happening on the Saturdays. शनिवार के दिन लेडीज टाइम और मेंस टाइम भी होता है। Take part in it. आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। All these links and these invitations you will get through a WhatsApp group. इसके लिंक्स और जो भी इनविटेशन है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं। Stay connected. इससे जुड़े रहिए। If you have any prayer request, we request you to speak to our pastors. You can call us or you can write to us. You will find the numbers below. अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप जो ये नंबर आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास्टर, हमारे लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Also, you can write a mail to us. आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पे आ रहा है। We'll be very happy to pray for you. हम बहुत खुश होंगे आपके लिए प्रार्थना करते हुए। What a great worship we had from our worship team. हमारी सुंदर आराधना वर्शिप टीम ने की है। With this art of worship, we are also going to hear a message from Pastor Pinu after this. इसके बाद हम पास्टर बीनू से मैसेज सुनेंगे। Wow. Let's pray for offering. आइए हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you for this beautiful time, परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते the हैं। provision that you've given to us in our lives. जो प्रोविजन आपने हमारे लाइफ में हमें दिया है, Lord, we come to you हम आपके पास आते हैं by faith विश्वास से with all that. और सबके साथ। And just Lord, we put it in the altar, Lord. और आपके उस ऑर्डर पे लेके आते हैं। You bless it. आप उसे आशीष कीजिए। You do it whatever for your purpose, Father. आपके लिए उसे इस्तेमाल कीजिए। Thank you so much, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Anoint the message. आने वाले वचन को अभिषेक कीजिए। Anoint your ears. हमारे कानों को अभिषेक कीजिए। Thank you so much, Father. धन्यवाद In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में Amen. आमीन।
मुझको अपने रूप में डाली तूने अपनी नूर है भर दिया अपने नूर से माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है सुकून है तेरी गोदी में बाहों में तेरी हिफाजत है पूछे सारे आंसू मेरे दर्द सारे गुम हो गए माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा जान से भी परवाह की है मेरी छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे जान से भी ज्यादा जान से भी परवाह की है मेरी छोटी से छोटी बातों की माँ के समान तू है माँ की तरह तू ख्याल रखता है माँ के समान तू है माँ से भी ज्यादा प्यार करता है Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord, for this beautiful morning. पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। And your word is eternal. आपका वचन अनंत का है You are so faithful, God, to still speak to us. और आप इतने विश्वास योग्य परमेश्वर हो, अभी भी हमारे साथ बातें करते हो। And thank you for those beautiful worship songs, Lord. और उन अच्छे आराधना के गानों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for each member of Lord of our church, Lord. हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, so Lord, we pray for bless those people, Lord, those who are watching, Lord. और जो अभी देख रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम आशीष की मांग करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Bless this message. इस संदेश को आशीषित कीजिए। Anoint each one of us. हम सभी को अभिषेक कीजिए And help us, Lord, to bear fruit, Lord, in our lives. और हमें मदद कीजिए कि हम हमारे जीवन में फलों को ला सके। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Okay, happy Father's Day. आप सभी को पिताओं के दिन की शुभकामनाएं। And it's amazing, like we made that video. और ये अद्भुत है जो हमने वीडियो जो बनाया। And because we are in this kind of setup, we can't meet in a place. और क्योंकि हम इस जगह ऐसे जगह पर है कि हम एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं। Hopefully in the coming months, we don't know, we may able to meet. We don't know exactly. और शायद आने वाले महीनों में शायद हम मिल पाएंगे और शायद नहीं भी, हमें नहीं पता। But once again, congratulations to all the fathers. और एक बार सभी पिताओं को जैसे शुभकामनाएं।
and what a great responsibility you have. और कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है. And like we are not comparing about father or mother, both of them are unique role. और हम किसी माता और पिता की तुलना नहीं करते हैं, दोनों का ही एक अद्भुत हिस्सा है. And God has given, God is a father. और हमारा परमेश्वर हमारा पिता है. And I want to talk two portions today. और दो हिस्सों से मैं आज One बातें is from the करूंगा. Old Testament, another is from the New Testament. एक नए पुराने नियम से है और एक नए नियम से है. We also have a spiritual fathers. और हमारे आत्मिक पिता भी होते हैं. Pastor Shaler, Pastor Shibeli, Pastor Carl, he recently went home with the Lord. पास्टर शालर, पास्टर शिबेली और पास्टर कार्ल जो हाल ही में परमेश्वर के पास चले गए हैं. And we thank God for these people और हम इन लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं because they are a covering in our lives. और हमारे जीवनों के ऊपर एक आवरण के जैसे वो है. And so just wanted to read this unique portion from Deuteronomy chapter 21. और व्यवस्था विवरण 21 में से एक अद्भुत हिस्सा में पढ़ना चाहूंगा. And don't be terrified by hearing this word. और इस वचन को सुनने के बाद आप घबरा मत जाइए. And I just wanted to make a comparison. और मैं सिर्फ एक तुलना करना चाहता हूँ And about this God is our Father. कि परमेश्वर हमारा पिता है उसके बारे में. God of the Old Testament, God of the New Testament is the same God. और जो परमेश्वर जो पुराने नियम का है और जो परमेश्वर नए नियम का वो एक ही है. Right, and but God is dealing with the human being in different time periods. लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के साथ जो काम करता है वो अलग अलग समयों में कर रहा है. There was a time of law, but now the time of grace. और एक नियम का समय था और अब अनुग्रह का समय है. And when you understand and when you read the word, it makes sense, and we are edified by doing that. और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये चीज हमें समझ में आती है और हम इससे प्रोत्साहित होते हैं. And I'm really thank you for all of you, your support, your prayer, your like watching the services online. और आप सभी के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप हमें सपोर्ट देते हो, आपकी प्रार्थना और जो संदेशों को देखते हो. You don't understand like how much is meaningful to us. और आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी कीमती होती It's है so encouraging to us, और हमें बहुत प्रोत्साहित करती है helping us to go forward और हमें मदद करती है और आगे बढ़ने के लिए. and continue to do that. और इसमें बने रहिएगा. And in the Bible, God is pictured as a father. और बाइबल में परमेश्वर को पिता के रूप के चित्रण में दिया है. Though in the Old Testament, very few. और पुराने नियम में बहुत कम बार. But in the New Testament, you can see that when at the Christ's arrival, like Christ is representing God as a father. और नए नियम में जैसे यीशु मसीह का आगमन हुआ तो यीशु मसीह अपने परमेश्वर को पिता करके पुकारता है. And we are his children. और हम उसके बच्चे हैं. But I was thinking about Jesus shared this story like a couple of times. और इस चीज के बारे में मैं सोच रहा था. यीशु मसीह ने इस कहानी को दोहराया था. A father had two sons. एक पिता के दो बेटे थे. Only two sons. दो बेटे सिर्फ. This is in Matthew chapter 21. मत्ती 21 में. Verse 28 onwards. और 28 के आगे. In that parable, Christ says a father had two sons. और उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि एक पिता के दो बेटे थे. One to the one confessed like I will go, but he didn't go to the field to work. और एक ने कहा कि मैं जाऊंगा खेती में काम करने के लिए लेकिन वो गया नहीं. But another son confessed that he will not go, but he later repented and went. लेकिन दूसरे बेटे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन बाद में पश्चाताप करके वो गया. बाद में In Luke 15 we can see the father had two sons, younger son and the oldest son. लूका 15 में भी एक पिता के दो बेटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा. In the Old Testament, like Isaac had two sons, Jacob and Esau. जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि ईसा के दो बेटे थे, ईसा और याकूब. So there are only two kinds of people on this world. तो इस दुनिया में सिर्फ दो तरीके के लोग होते हैं. You may say the man and woman. और आप कहोगे पुरुष और स्त्री. No. नहीं. Like saved and unsaved. एक उद्धार पाया हुआ और जिसका उद्धार नहीं हुआ. There is no middle ground. और इसके बीच में कोई ऐसा दूसरी जगह नहीं है. Either you are saved, either you are unsaved. पहले तो एक तो आप बचाए गए हैं, उद्धार पाए हैं या फिर उद्धार ना पाए. Only two classes of people.
सिर्फ 2 स्तर है लोगों के। It's like the Titanic was sank into that ocean, and this is what they put it in that, in that England, wherever it is, saved or lost. और टाइटैनिक जो इंग्लैंड में जो जहाज था वो डूब गया था, तो इंग्लैंड में उन्होंने ऐसे लोगों के नाम लिखे थे जो बचाए गए और जो खोए हुए। There's only 2 classes of people today: और आज भी दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, saved or unsaved. एक बचाया हुआ और एक खोया हुआ। In first Romans chapter 5 talks about the first man and also the last man. रोमियो 5 पहला मनुष्य और आखिरी मनुष्य की बात करता है, It talks about that. उसके बारे में बातें करता First है। Corinthians 15 talks about that. पहला कुरिन्थियों 15 भी उसके बारे में बात करता है। First Adam, the last Adam. पहला आदम और आखिरी आदम। There are only 2 classes of people. सिर्फ 2 स्तर के लोग हैं। And father has 2 sons. और पिता के 2 बेटे होते हैं। So, but in Deuteronomy 21 verse 18 onwards, और व्यवस्था विवरण 21-18 के आगे, and this is a unique passage. और ये एक अद्भुत हिस्सा है। Let understand, this is the time of the law. और हमें ये याद रखना है, ये नियम के समय की बात है। Under law, what can happen? नियम के नीचे क्या चीजें हो सकती So हैं? read it in Deuteronomy 21 verse 18. तो व्यवस्था विवरण 21-18 में पढ़ेंगे। If a man has a stubborn, rebellious son who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, and who, when they have chastened him, will not heed them, then his father, his mother shall take hold of him, bring him out to the elders of the city, to the gate of this city. यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटक के निकट नगर के पुरानियों के पास ले जाए। Verse 20, they shall say to the elders of his city, this son of ours is stubborn, rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Then all the men of his city shall stone him to death with a stone. So shall you put away the evil among you, and evil from among you, and all the Israel shall hear and fear. और वे नगर के पुरानियों से कहें, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब सब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। So in this passage you can see that this father has this son. और इस हिस्से में हम देखते हैं कि इस पिता का एक बेटा है। He is stubborn. और वो हठीला है। He is rebellious. और He दंगेत is है। disobedient. और बातें नहीं मानता। He is a glutton. और पियक्कड़ है। He is also a drunkard. पियक्कड़ है। And this is like 5 references about this son. और इस बेटे के बारे में इस 5 चीजें लिखी हैं। And because they disciplined him, didn't hear. और उन्होंने जैसे उसका अनुशासन किया होगा, लेकिन उसने सुना नहीं। They brought him to the elders. तो वो पुरानियों के पास वो लेकर आए। Under the law, this son has to be stoned to death. और नियम के नीचे इस बच्चे को जैसे पथराव करके मार डालना था। Like this is exact condition of the man. और मनुष्य की स्थिति ऐसी ही है। When Adam committed sin, जब आदम ने पाप किया, he was standing there जब वो वहां पे खड़ा था, as guilty, एक दोषी, ashamed, और जैसे शर्मिंदा, fearful, डरा हुआ, waiting for the judgment, और न्याय के लिए रुका, waiting for that death is going to be affect me immediately. He was expecting that, although the spiritual death happened. और वो उसके लिए रुका था कि मेरी मौत अभी आने वाली है, भले ही उसकी आत्मिक मौत पहले ही हो चुकी थी। That's a picture. और ये उसका चित्रण This है। is a law. और ये नियम, Law condemns us और नियम हमें दोष लगाता है, because it shows our real condition. क्योंकि वो हमारी सच में जो सच्ची दशा को दर्शाता है। It has to be like there has to be paid for. और जिसके लिए हमें भुगतान करना है, It has to be paid for. जिसके लिए हमें भुगतान करना है। And this is what they brought into the elders, और इसकी वजह से वो पुरानियों के पास उसे लेकर आए, and they pronounced the judgment, और उन्होंने जो न्याय सुनाया death, और कि मार डालो, death. मौत। There is no other solution. उसके लिए दूसरा कोई और सुझाव नहीं। Under law, नियम के नीचे death. मौत। All men found guilty.
और सारे मनुष्य जैसे दोषी पाए गए। But this is the same Father लेकिन ये वही पिता in है the New Testament too. जो नए नियम में भी है। In Luke chapter 15, लूका 15 में when the son जब बेटा went away from the father, जब अपने पिता से दूर चला गया, he should have been stoned to death उसे भी पथराव करके मार डालना चाहिए because था, he's a rebellious. क्योंकि वो भी हठीला है He's stubborn. और वो भी जैसे कि उड़ाऊ है, हठीला है, दंगे थे। Maybe he's a drunkard in the faraway country. We don't know. और शायद दूर देश में शायद वो पियक्कड़ भी है Like there's no accountability in his life far away. और उसके जीवन में कोई अधीनता ही नहीं है क्योंकि But वो what- बहुत दूर है। What happened in that story? लेकिन उस कहानी में क्या हुआ? Instead of stoned पथराव to की जगह death, पर instead of stoned to death, उसको पथराव करके मार डालने की here the जगह, father is running up for the child, running for the son. और यहाँ पे पिता है अपने बेटे के लिए दौड़ रहा है। When he comes back, जब वो वापस आता है this is a father kissing him. और यहाँ पे पिता है जो उसका चुम्बन लेता He है is putting the ring in his finger, new clothes and new sandals. और उसके उंगली में अंगूठी डालता है, नए कपड़े, नए जूते उसको देता है Giving a new identity, और एक नई पहचान उसे not देता as है। a slave, अब वो सेवक के जैसे नहीं, not in a probation, और जैसे कि कुछ समय के लिए जैसे दूर रख के नहीं, not in the outhouse with the slaves. He will stay. और सेवकों के साथ दूसरे बाहर के घर में नहीं रह रहा है। No, restored his position. और उसकी जो पहले जो जगह थी उसी जगह पर उसे वापस लेकर आया। Father, पिता, this is a father's heart. ये पिता का हृदय है। See, the Adam is standing there fearfully. और आदम सोचिए उस जगह पर डर कर खड़ा हुआ Think है, about Jesus is coming. और सोचिए यीशु मसीह आया In the promise, is coming there and talking to him. और एक वायदे के रूप में वहां पर आकर उसके साथ बातें कर रहा है। Adam, what happened? आदम क्या हो गया? You are totally disfigured. और अभी तो तुम बिल्कुल ही अस्वस्थ हो You are you took a monstrous shape. और तुम्हारा आकार भी जैसे शैतान के जैसे हो You गया have an attitude. The devil's attitudes are coming in your life. और शैतान की जो तरीका है, सोच है, वैसे तुम्हारे जीवन में आ रही है। What happened to that beauty which you had? और उस सुंदरता के साथ क्या हो गया जो तुम में थी? Is waiting. Adam is maybe fearful, और रुका हुआ है यीशु, और आदम डरा हुआ है waiting for the judgment. और उसके लिए रुका है But कि something न्याय happened. होने वाला है। Something happened in that Like- story, Genesis 3, isn't it? लेकिन उत्पत्ति 3 उस कहानी में कुछ I हुआ just saying imagination, just saying this. और मैं खुद सोच के इसको कह रहा हूँ। What is Jesus saying? यीशु मसीह क्या कह What रहा Jesus है? saying to Adam? आदम से क्या कह रहा है? Adam, look up. ऊपर देखो आदम, Look up. ऊपर देखो, Look to me. मेरे तरफ देखो, I will take your place. मैं तुम्हारी जगह लूंगा I will die. I will take that punishment which you supposed to take. और मैं मरूंगा। जो जगह तुमने लेनी चाहिए वो जगह मैं ले लूंगा। I will take that place. I will take that suffering and the punishment which you should take, and it will end you in eternity, far away from the relationship with the Lord. और मैं वो जगह लूंगा और जो तुमने लेनी चाहिए, वो परेशानी, वो प्रायश्चित, वो जो तुम्हारे ऊपर होना चाहिए था, जो तुम्हें अनंत में बहुत दूर कर देता था, मैं वो ले Jesus said लेता that I हूँ। will pay for it. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसका भुगतान करूंगा, I will pay for it. मैं इसका भुगतान You have करूंगा। to stone to death, और तुम्हें पथराव करके मार डालना चाहिए, but I will take that punishment. लेकिन मैं उस सजा को मैं ले See, लूंगा। this is the heart of the Father. और ये परमेश्वर पिता का हृदय So है। God has two sons. और एक पिता के दो The first Adam परमेश्वर के दो बेटे, and the पहला last आदम Adam. और आखिरी आदम। The first Adam failed miserably, और पहला आदम बहुत बुरी तरह से गिर गया, waiting for the judgment. न्याय के लिए रुका रहा। But the second Adam or the last Adam, दूसरा आदम या फिर आखिरी आदम, Jesus, यीशु मसीह, he came. वो आया, He took that punishment. उसने वो सजा अपने ऊपर ली He lived a perfect life. और वो एक परिपूर्ण जीवन जिया। He took all the punishment which would have been fallen on Adam, first Adam, or on us. और वो सारी जो सजा उसके ऊपर आनी चाहिए थी, वो उसने अपने ऊपर ली। What a message. कितना अद्भुत संदेश What a heart of the Father. और कितना अद्भुत पिता का I हृदय want है। to think about this phrase, Luke chapter 15. लूका 15 में से इस वाक्य को मैं चाहूंगा कि आप सोचें, Think about this. उसके बारे में This is सोचें। the Father's confession और पिता ये कबूल करता है to all. सबके सामने, He says that
Verse 24. वचन 24 में, This my son, क्योंकि मेरा यह पुत्र, this my son. मेरा यह पुत्र, That is the heart of the father. ये एक पिता का हृदय है। Like when we go to somebody with our children और किसी के घर पे हम हमारे बच्चों को लेकर जाते हैं and you are meeting this new person or new people, और नए लोगों जिनसे आप मिल रहे हो, you introduce your child. तो आप अपने बच्चे का परिचय कराते ये हो। मेरा बेटी है, मेरा बेटा है. This is my son or my daughter. ये मेरा बेटी या मेरा बेटा है। Because you are making a claim, you are having a claim on the child or on that son. और एक Right. तरीके से आप अपना हक उस बच्चे के ऊपर जता रहे हो, That's amazing. और ये अद्भुत है। This my son was dead. ये मेरा बेटा मर गया था। You are going in a crowded place. अगर आप बहुत ही भीड़ वाली जगह पे Your जा रहे child हो is with you. और आपका बच्चा अगर आपके साथ है, There is a connection, point of contact with you. और एक जगह होती है जहाँ पर आप एक दूसरे से जुड़ते हो, Right? Like the child is holding you और शायद बच्चा आपको पकड़ के रखता or है, holding your pocket, pants pocket. पैंट के पॉकेट को You पकड़ता see, है know that he's secured. कि वो जानता है कि वो सुरक्षित है। I think that's what we need to hear और आज हमें यही सुनने की जरूरत है from fathers. पिता से Like, this is my son. कि ये मेरा बेटा है, This my son. ये मेरा बेटा He है। looks at Jesus and at the Matthew chapter 3 at the time of baptism said, this is my son. और उसने Beloved, this is my beloved son. यीशु मसीह की तरफ मत्ती 3 में देखा और उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। Right? In Deuteronomy 21 also say the same phrase. और व्यवस्था विवरण 21 में भी वही वाक्य दोहराया गया है। Verse 20. और वचन 20 में, This our son ये हमारा बेटा is rebellious. और ये हठीला है। This our son, ये हमारा बेटा he is disobedient. और वो हमारी मानता नहीं। But again, in this chapter, Luke लेकिन 15, इस लूका 15 में, this my son was dead, ये मेरा बेटा मर गया था but he's alive. लेकिन वो अभी He's come जिंदा back. है, He's alive. वो जीवित I have है। a story to read. मेरे पास एक कहानी है जिसे मैं पढ़ना I चाहूंगा just read from that book. और इस किताब से मैं पढ़ूंगा And yeah, maybe you can listen to this amazing story. और ये अद्भुत कहानी आप सुन सकते हैं। This has happened somewhere in US or Europe. ये अमेरिका, यूरोप कहीं जगह पर ये हुआ है। It doesn't matter, but I just read the story. मैं कहानी पढ़ूंगा। Oliver Dewink was just 3 months developed in his mother's womb when his mother had an accident. और ओलिवर डिवलिंग करके जो व्यक्ति है वो अपने माँ की कोख में था, जब वो 3 ही महीने की थी तो उसका अपघात हो गया। Gas leaked from the stove in the kitchen. In the bedroom, Catherine Dewink lost consciousness, falling onto the bed. और गैस लीक हो गया था और किचन में, और फिर बेडरूम में जो कैथरीन डीविंग है वो बेहोश होके अपने बिस्तर पर गिर गई थी। She was pregnant 3 months. और 3 महीने वो पेट से थी। And then Oliver's father had already left for the work. ओलिवर के पिता पहले ही काम के लिए निकल चुके थे। But at the train station, he remembered something he had forgotten from home and he returned to the house. लेकिन ट्रेन स्टेशन पे उनको याद आया कि वो घर पे कुछ भूल गए हैं, इसलिए वो वापस घर लौटे। So the father immediately came back and he smelled the gas, quickly carried his pregnant wife outside into the fresh air. जब पिता आए, उन्होंने जब गैस का उनको बदबू आई तो उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बाहर लेके खुली हवा में लेकर गए। She revived quickly. और वो होश में आई तुरंत। When Oliver was born 6 months later, he appeared to be a healthy baby boy. जब ओलिवर 6 महीनों के बाद जब उसका जन्म हुआ तो वो देखने में वो तंदुरुस्त बच्चा था। A couple of months after the birth, Catherine was playing with Oliver before an open window. और कुछ महीने के बाद, जन्म के बाद, कैथरीन जब ओलिवर के साथ खिड़की के पास खेल रही थी, She held him up to the warmth of the bright sun, enjoying the fresh air and the sun's soothing rays. और वो सूरज की किरणों में उसको खड़े लेके और खुली जो हवा थी उसका जो मजा ले रही थी। Then she noticed something odd. Her baby was staring directly into the sun without blinking. तो उसने ध्यान से देखा कि उसका जो बच्चा था सूरज की तरफ खुली आंखों से देख रहा था और उसकी पलकें झपक नहीं रही थी। Oliver was blind. ओलिवर अंधा था। Eventually, the doctors would tell the Dewink's family that Oliver not only couldn't see, he also wouldn't be able to hold up his head, crawl, walk, speak, or hold anything in his hand. और डॉक्टर ने कुछ समय के बाद उन्हें ये भी बताया
कि ओलिवर सिर्फ अंधा ही नहीं है, लेकिन अपने सर को ऊपर नहीं उठा पाएगा और चार पैर पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा या फिर कुछ पकड़ नहीं पाएगा। The gas that Catherine had inhaled early in her pregnancy had affected Oliver's development. और जो गैस कैथरीन ने सूंघ लिया था जब ओलिवर जब 3 महीने का ही उसके पेट में था, तो उसके जो बढ़ने में उसका परिणाम हुआ था। He was born with a severe brain damage. और वो एक बहुत ही पूरी तरह से दिमागी कमजोरी के साथ जन्मा था। What a tragedy, isn't it? और कितनी बड़ी दुख की बात है। But listen to what they did. और लेकिन सुनिए उन्होंने क्या किया। So this family asked the physician what they should do with their son. तो इस परिवार ने उस डॉक्टर जो फिजिशियन था उससे पूछा कि हाँ वो क्या कर सकते हैं। So the doctor suggested him put him in an institution. तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि एक कुछ संस्था में उसे रख दीजिए। But Jose and Catherine refused to consider such possibility. They said, the father said, he is our son, we will take Oliver home. लेकिन जोस और कैथरीन ने वो उस चीज का इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है और हम इसे घर लेके जाएंगे। This is our son. ये हमारा बेटा है। We will take him home. और हम इसे घर लेके जाएंगे। So the doctor said, take him home and love him. तो डॉक्टर ने उनसे कहा आप घर लेके जाइए और उसे प्यार कीजिए। And they did it for 33 years. और उन्हें 33 साल तक किया। Even as an adult, Oliver's size was like a 10-year-old. जब 33 साल का होने के बावजूद भी ओलिवर का जो शरीर था सिर्फ 10 साल के बच्चे के जितना ही था। Large head, बहुत बड़ा सिर, twisted legs, और टेढ़े पैर, required care for all of his 33 years. और पूरे 33 साल तक पूरी तरह से उन्होंने उसको संभाला। He was fed by his family 3 times a day. और उसका परिवार ही उसको खाना खिलाता था दिन में 3 बार। He was bathed and changed regularly. उसको नहलाना, उसको कपड़े बदलना, ये सारी चीजें। So the younger son asked the father one day, तो छोटे भाई ने एक दिन अपने पिता से पूछा, how did you manage to care for Oliver for 33 years? तुमने 33 साल तक ओलिवर का इतना इसे कैसे संभाल पाए? So the father said, तो पिता ने कहा, it was not 33 years. ये 33 साल नहीं थे। I just asked myself, can I feed Oliver today? मैंने सिर्फ अपने आप से पूछा क्या मैं ओलिवर को आज के लिए खाना खिला सकता हूँ? The answer was always, I can. और जवाब हमेशा आता था, हाँ मैं कर सकता हूँ। The father didn't forsake that son. और उस पिता ने उस बेटे का त्याग नहीं किया। This is my son. ये मेरा बेटा है। That's a confession of our heavenly Father. और हमारे स्वर्गीय पिता भी इसी चीज को कबूल करता है। Talking about us. हमारे बारे में। We are stoned to death. और हमें पथराव करके मार डालना चाहिए We था। were actually supposed to be stoned to death. और हमें वैसे पथराव करके मार डालना चाहिए था। But he received us. लेकिन उसने हमारा स्वीकार Because किया। of his another son, Jesus Christ. उसके दूसरे बेटे की वजह से जो यीशु मसीह, He came. वो आया, He died for us. हमारे लिए मर गया। Psalm 68 verse 5 says he is a father of fatherless. और भजन से 68 कहता है कि वो अनाथों का पिता है। He is a father of the fatherless. अनाथों का पिता है। Maybe some people don't have a father. शायद कुछ लोगों के पिता नहीं है। And we know that God is our father. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। And we have a body of Christ, a new community where we have godly fathers. और मसीह के देह में हम जानते हैं कि हमारे एक ऐसे परमेश्वर के भय मानने वाले ऐसे पिता है। When Mephibosheth lost his father, मेफीबोशेत के पिता ने अपने पिता को खो दिया था। he became crippled. और वो लंगड़ा भी हो गया था। Like this Oliver story. ओलिवर की कहानी के जैसे। Living in a faraway Lodibar country. और बहुत दूर देश लोदीबार ऐसी जगह पर जी Living रहा in था। fear. डर में जी रहा था। Because the new dynasty has come. अब नया राज शुरू हुआ है। He may come and kill the former kings and their families. तो हो सकता है वो आके पहले राजा और उसके परिवार को मार डाले। But David came with the news. लेकिन दाऊद इस समाचार को Is लेकर there आया। anyone in the house of Saul that I Saul. may show kindness for Jonathan's sake? सॉल के घराने में कोई है कि योनाथन के कारण मैं उसके ऊपर दया कर सकूं। Instead of death, मौत की जगह पर he got a position उसको एक जगह मिली। as one of the royal family members in David's house.
रॉयल के परिवार का राजकीय परिवार का हिस्सा जो दाऊद के घराने से। We have a father. हमारा एक पिता है One of the like a amazing privilege, like at the moment you born again. और एक बहुत बड़ी बात है आपके जीवन में जब आपका नया जन्म होता है। Galatians chapter 4 verse 6 says, गलाती 4:6 कहता है God has poured out His Spirit so that we can call Him Abba, Father. परमेश्वर ने हमारे अंदर उसके आत्मा को उंडेल दिया है कि अब हम उसे अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। Psalm 103 verse 13 says that as the Father pities His children, so the Lord pities His children. भजन संहिता 103:13 में कहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है वैसे ही परमेश्वर हम पर दया करता Because है of His mercy we can call Him Father. और उसकी दया की वजह से हम उसे पिता करके पुकार सकते हैं। You see, when you pray, the first word comes, Father. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहला शब्द हमारे मुंह से आता है वो है पिता। Disciples to ask Jesus, teach us to pray, and Jesus replied with this answer, Our Father. और जब शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ तो यीशु मसीह ने पहला शब्द जो उनसे कहा वो था हाँ ए हमारे पिता। As He was leaving like this earth on the cross, He said, Father, forgive them. और जब इस धरती को छोड़कर जा रहे थे क्रूस पर थे तो उन्होंने ये कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर दे। After the resurrection, He met Mary Magdalene and he said to her, I am ascending to my Father and your Father, my God and your God. और पुनरुत्थान के बाद जब मरियम से उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैं मेरे पिता जो मेरा और तुम्हारा पिता है उसके तरफ ऊपर जा रहा हूँ। This is our privilege और ये हमारे लिए बड़प्पन की बात है because God is our Father. कि परमेश्वर हमारा पिता है He has a claim on us. और वो हम पर अधिकार He जताता says है। that this is my son. वो कहता है कि ये मेरा बेटा है। Yes, he deserved death. और हाँ इसके ऊपर मौत होनी चाहिए All इसकी। enemy and demons and devil can say that he deserved death. और सारे शत्रु और शैतान और सारी उसकी सेना कह सकती है कि इसको तो मौत मिलनी चाहिए। God silenced those accusations by showing that other son. और परमेश्वर ने सारे उन दोषों को शांत कर दिया वो दूसरे बेटे को दिखाकर The last Adam, जो आखिरी आदम था who shed his blood on the cross. जिसने अपना लहू उस क्रूस पर बहाया। That blood speaks better than the blood of Abel. और वो जो लहू है हाबिल के लहू से बढ़कर बातें It करता है cleanses our conscience. और वो हमारे विवेक को धोता है। That's why the Apostle Paul said, I am the worst of all sinners. इसलिए पौलुस जो शिष्य है वो कहता है कि मैं सारे पापियों से नीचे ऐसे पापी हूँ। Right, worst of all sinners. He can come to that time and say that those things because he considered the love of the Father. सबसे बुरा मैं पापी हूँ ये वो शब्द वो कह गया क्योंकि वो पिता के बारे में सोच रहा था। We are living in a world filled with a lot of complexities और हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं बहुत जटिल है and lots of information. और बहुत सारी information है। There is no time, like it's not such a time like in history, like such lots of information which is available now. और इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं था कि इतनी जानकारी मौजूद थी जितनी आज हमारे पास है। So much information available. इतनी सारी जानकारी हमारे पास है। It we are confused to trust which information should I like believe so that it's accurate. और हम समझ नहीं पाते कि कौन सी जानकारी के ऊपर हम भरोसा रखें कि कौन सी सच्चाई है। Also, like we are also confused about our own life because our heart is evil. और हम हमारे खुद के जीवन के बारे में भी सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा हृदय भी बुरा है। We don't know about our own life. हमारे खुद के जीवन के बारे में हमें पता नहीं है। Thank God for this word of God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है The love of the Father. और एक पिता का प्रेम We can see it in this scripture, in this book. और इस किताब में हम उसे देख सकते हैं। Because there are so many voices. कितनी सारी आवाजें हैं क्योंकि The Bible also says that like Jesus talked to the Pharisees, the religious leaders, your father is of the devil. क्योंकि यीशु मसीह जब फरीसियों से बातें कर रहा था वो कहता था कि तुम्हारा पिता शैतान है। There is a father. एक दूसरा पिता है। Like so, like as earthly fathers, like we are like a amazing responsibility regarding our children.
इस धरती पे एक पिता होने के नाते हमारी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों की तरफ। Today they are very cute or like amazing child. Maybe when they grow up, they make grievous. आज दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं और लेकिन जब बड़े होने के बाद शायद वो दुख पहुंचाएंगे। We don't know हमें नहीं पता how can that happen. और ये कैसे होगा, But then the time right now, लेकिन अभी जो समय है we can reveal the nature of the Father. हम पिता के स्वभाव को दर्शा सकते Yes, हैं। stoned to death पथराव करके मारना or love, care. या फिर प्रेम करना, There is a संभालना, belonging और जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ or a claim. या फिर इसका There अधिकार are है। many fathers, like other fathers are there in this world. इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अलग अलग पिता हैं TV father, TV, और एक टेलीविजन, like TV or like whatever, media fathers. We can give the child, okay, you do it, so I will be free. और मीडिया पिता की हम सोचते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा तो हम बच्चों को वो चीजें दे देते हैं। It's okay, it can happen, but it's not all the time. हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं, Because they also want to express their thoughts, their feelings, what they are going through. क्योंकि वो अपनी भावनाओं को दर्शाना चाहते हैं, कुछ चीज से गुजर रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहते हैं। TV can't hear it, टीवी नहीं सुन computer पाएगा, can't hear it, कंप्यूटर नहीं so सुन mobile पाएगा, cannot hear that. मोबाइल नहीं सुन पाएगा, They need the fathers और उन्हें पिता की जरूरत है around them. उनके आस पास होने के Maybe लिए। a teacher is a father, school teacher, शायद स्कूल टीचर उनका पिता हो जाएगा। right? Like they say that, okay, this is what, there is no like a creation. This came from Big Bang. और बोलेंगे कि सृष्टि कुछ नहीं थी, सृष्टि की रचना एक बिग बैंग हुआ, बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। If we don't father these children, और our children, अगर हम हमारे बच्चों को पिता बन के नहीं बड़ा करे तो somebody else will do. कोई और उन्हें बड़ा करेगा, Someone else will do it. कोई और उन्हें बड़ा करेगा, Because everybody needs a father. क्योंकि हर एक को पिता की जरूरत है। Let's use it. तो आइए इसका इस्तेमाल करें। Looking at the father in the Bible, बाइबल में जो पिता है उसको देखते हुए, what a pain he bore और कितनी तकलीफ से वो गुजरा when his children went far away from him. जब उसके बच्चे उससे दूर चले गए, But what a delight when he saw his own son going to the cross. लेकिन कितनी खुशी की बात उसको महसूस हुई जब उसका खुद का बेटा उस क्रूस पर गया, Expressing the heart of the father on that cross. और उस क्रूस पर अपने पिता का हृदय उसने जो दर्शाया, And saying those words, और उन शब्दों को जब उसने कहा, it is finished, ये पूरा हो चुका, it is finished. पूरा हो चुका, Victory cry. और एक विजय की It घोषणा, echoes throughout eternity. और अनंत तक ये जैसे कि गूंजती रहेगी। It has happened in our life, your life too. और ये हमारे जीवन में भी हुआ और आपके जीवन में भी हुआ। May God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, You are our Father. आप हमारे पिता हो। In Isaiah 64 says, doubtless you are our Father. और यशायाह 64 कहता है कि इसमें कुछ संदेह नहीं है कि आप हमारे पिता हो। Lord, this world can be like an orphan's place, और ये दुनिया जैसे एक अनाथ आश्रम जैसे है, but they need a father. और उन्हें पिता की जरूरत है, You are the true Father. और आप एक सच्चे पिता हो। Jesus said, I never leave you as an orphans. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ करके नहीं Lord, छोड़ूंगा। we pray, Lord, this time, Lord, this week, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय में, इस हफ्ते में, maybe somebody, Lord, a new person, Lord, to call you as a father. कि कोई नया व्यक्ति हो जो आपको पिता करके Somebody पुकारे, is running to your house, Lord. और कोई आपके घर की तरफ दौड़े, Lord, we are called to do this, Lord. और हमें इस बुलाहट से आपने बुलाया है, You are called to do that. We are called to do that, Lord. और हमें ये करने के लिए बुलाया गया है। Church is not a retreat center और कलीसिया एक रिट्रीट सेंटर where जैसे नहीं है, we just come and hide out from the dangers. और बाहर के खतरों से But हम this आके is- छुप जाए। This is a place where renew our like life and to go out and to share this life with others. और ये ऐसी जगह है हम आके हमारे जीवन को नया करते हैं और बाहर जाके दूसरों के साथ वो बांटते हैं। Lord, we pray today. आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, Lord, make us, Lord, and give us words to share with other people, Lord.
और हमें ऐसे बनाइए कि हम इन शब्दों को दूसरों के साथ बांट सके। We thank you, Lord. You are our Father. हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पिता हो। At this point of time, इस वक्त if anyone who is listening to this message, अगर कोई इस संदेश को सुन रहा है, you don't have that assurance that God is your Father, अगर आपको ये पूरी तरह से पता नहीं है कि परमेश्वर आपका पिता है, you can say this simple prayer इस साधारण सी प्रार्थना को आप कर सकते by हैं। putting your trust in Jesus Christ. यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखते हुए Just say this prayer. इस प्रार्थना को कीजिए। Jesus, यीशु, come into my heart. मेरे हृदय में आओ, I need you. मुझे आपकी जरूरत है I need that Father's love. और मुझे उस पिता के प्रेम की जरूरत है। I need forgiveness. मुझे क्षमा की जरूरत है। Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। If you do that prayer, अगर आपने इस प्रार्थना को किया है, Bible says that बाइबल ये कहती you are है a child of God. आप परमेश्वर के बेटे हो You can call God as a father, और आप परमेश्वर को पिता करके पुकार सकते हो, not because of our good works, हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, but because of His grace. लेकिन उसके अनुग्रह की वजह से। Thank you. धन्यवाद। May God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you all. सभी को धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया,
यीशु ने ऐसा प्रेम